Today I'm going to start grammar concept. Though we might have done it earlier also, but now I am taking the same concept once again, that is subject to verb agreement. और अब जो मैं ले रही हूँ, the way I am going to take is I'll be re-revising the rules with you and also the kind of question that you have in your exams. अब हमें ये नहीं देखना है कि हमें सब्जेक्ट टू वर्ब आता है या नहीं. आई नो प्रेटी वेल दैट यू नो दैट, बट अब एडिटिंग में अगर आपके पेपर में आ रहा है, से द सेम थिंग कम्स विथ एडिटिंग, तो आप कैसे करोगे? मतलब व्हेन वी आर लुकिंग इनटू द क्वेश्चंस ऑफ एडिटिंग, तो हमें पता है कि व्हाट हैपेंस इज we don't understand कि editing में क्या होता है. Most of the time what the children do is they would look into the जो मोटा मोटा उनको लगता है ए को द में चेंज कर दो, द को एन में चेंज कर दो. Whether it has to be changed or not, वो भी तो हमें देखना होगा ना. तो इसीलिए I am going to revise the concept of subject to verb, plus I'll be doing the questions based on editing so that you are editing. इसको कैसे कैसे आपके पेपर में आता है, that is editing की तरह से आ सकता है, और it may come as gap filling or fill-ups. Means these are the ways subject to verb comes in your paper. It will never come, आपके पेपर में कभी ये नहीं लिखा होगा fill in the blanks with subject to verb. No, it will not be there. It would be only on the basis of editing or gap filling. So let us start with the same. We have subject to verb, and as I have written, it is assessed in your paper as editing, fill-ups or gap filling. Means आपके पेपर में अगर आपने देखा हो close filling करके आता है, तो it may come in that way. तो हमें क्या करना होगा? What we have to do is we have to learn the rules. हमें रूल्स को लर्न करना होगा. यानी अब रूल्स को हम ऐसा नहीं कि बाय हार्ट. मींस व्हाइल वी आर फ्रेमिंग अ सेंटेंस वी मस्ट सी द टेंस, द वर्ब्स आर पुट इन द राइट मैनर. हमें ये समझ आना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट इज. हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो और जो वर्ब है, आर दे मैचिंग? Sometimes while we are making the sentences, we don't know whether we are using the subject as a singular, we are using it in the plurals. वो हमें देखना है. तो very first is when you are going with, तो हमें देखना होता है tense, then whether your subject is in singular or plural. First of all, you have to see what is the tense of your sentence. ठीक है? Now sentence में अगर if it is present tense, then we need to understand कि हम singular के साथ कौन सा verb use कर रहे हैं, and with plural हम कौन सा verb use कर रहे हैं. With the past tense, we are using second past tense जो है, हम second form of verb को use करते हैं for single simple past tense. But if it is, say, present tense, let us say it is present tense. आजकल इस चीज का मैं एक बहुत ही फनी सा वो बताऊंगी, that recently I was watching this movie, आलिया भट्ट की जो न्यू मूवी आई है. The entire song, the entire thing is spoken in wrong words. Like she says I loves, she तो ये that is where we are wrong. हम जब यूज कर रहे हैं थर्ड पर्सन का मतलब क्या है? he, she,
या फिर इट या कोई भी नेम, एनी नेम, से वी आर यूजिंग ऋतिक, तो एनी नेम, द काउ, द मंकी, एनीथिंग सिंगुलर, then we are using the verb. I am talking about present tense and that too in the indefinite, यानी कि तो हम यूज कर रहे हैं वर्ब का एस या ई एस फॉर्म। यानी वाइल आपने सेंटेंस को पढ़ा, एडिटिंग को पढ़ा, आपने एडिटिंग को पढ़ा, and then you saw that the sentence or the paragraph is in present tense. आपका जो पैराग्राफ है, आपका जो पैसेज है, that is in present tense. Then what you will do is you have to see whether the verb is matching or not. यानी if it is say he, तो यहां हम लोगों ने जो यूज किया है वो है goes. Means anything which is related in s or es form. This we need to keep it in our mind कि हमारा अगर टेंस प्रेजेंट टेंस है, इनडेफिनेट में हम लिख रहे हैं, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इट के साथ है तो इट जंप्स, इट जंप्स, इट के साथ जंप नहीं आता, इट के साथ जंप्स, गोज, मतलब एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू एस और ई एस वाला जो है दैट वुड कम. So this is very first rule. यानी कि whenever you are framing a sentence or you are editing, तो आपको ये चीज को देखना है that whether my rule number 1 is whether the tense is in present and whether I am using the right verb for it or not. अगर मैं I के साथ यूज कर रही हूं, that is the first person, या फिर second person यूज कर रही हूं you. हम हिंदी में हम जो है इन संस्कृत हम उल्टा बोलते हैं. संस्कृत में जो हमारा चलता है वो चलता है गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसी, मतलब पहला गच्छति यानी कि किसी और के लिए, देन आपके लिए, फिर हमारे लिए होता है ना. बट इन इंग्लिश इट इज ऑलवेज ऑपोजिट. फर्स्ट पर्सन इज आई, second person is you and third person is he, she, it, anything in singular है तो वो. तो अगर हमारा first person है, second person है और हमारा subject plural है, then हमारा जो है it goes as verb का first जाएगा, first form of verb. Means I go to temple, you go to temple, they go to temple. Means anything in the present tense in the indefinite form. अगर it is first person, second person or plural, then we use the verb first form. ये हमारा जो है सबसे पहला रूल है. This is our rule number 1. Now let us go to rule number 2. अभी तो बहुत आसान है, आने वाले टाइम में आपको पता लग जाएगा. Now rule number 2 is said that आपको ये भी देखना आपका सब्जेक्ट क्या कहता है. सब्जेक्ट का मतलब है अबाउट द पर्सन, अबाउट द थिंग, अबाउट एनीथिंग विच वी आर स्पीकिंग, जिसके बारे में हम लिख रहे हैं.
Now this you may not understand. What is clause? Clause मतलब condition. We are not here talking about clause. Clause का मतलब होता है when हम subject के बारे में बात कर रहे हैं but वो किसी चीज से अलग हो गया है. It has been separated. यहाँ पर for example these are two examples. All my friends in the town dash him. All my friends except Rohan dash you. अब हमारा जो वर्ब है वो तो है नो. ठीक है. All my friends in the town ये हमारा क्लॉज है. This is a condition. In the town. Now हमें क्या यूज करना है? हमें फ्रेंड्स के लिए यूज करना है. हम फ्रेंड्स के बारे में बात कर रहे हैं. So definitely it would be no. All my friends in the town know him. अब ये तो सबको पता है. This is easy. But now let us come to this one. All my friends except Rohan. अब आपके पास all my friends एक क्लॉज है और एक्सेप्ट रोहन है. अब आप क्या करोगे? मतलब what is a common error? आप मतलब I'm not talking about you. I mean to say the common error is मैम ने कहा था सिंगुलर के साथ में एस वाला आएगा. तो हमें रोहन के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं. हम यहाँ बात कर रहे हैं फ्रेंड्स के बारे में. We are not talking here about रोहन. हम बोल रहे हैं मेरे सारे दोस्त रोहन को छोड़कर तुम्हें जानते हैं. तुम्हें जानते हैं, तुम्हें जानता है नहीं. तो यहां हमारा जो सब्जेक्ट है वो फ्रेंड्स है ना कि रोहन. तो हमारा यहां पर सेम जाएगा नो. दिस इज वेरी कॉमन एरर दैट you may find in any editing. All my friends except Rohan knows you. अब बच्चे क्या कहते हैं? All my friends है. अच्छा friends नहीं है, friend लिखना है. भाई except का मतलब है रोहन के अलावा. रोहन के अलावा सब तुम्हें जानते हैं. तो the editing here is no. अगर knows लिखा है तो उसे no करना है, ना कि all को कुछ और या my को your करना. no. All my friends, here the subject is talking about friends, not about Rohan. रोहन को छोड़कर. So that means the same rule जो हमने यहाँ पे लिखा था कि प्लूरल के साथ हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चलेगा, वही हमारा यहाँ पर रूल अप्लाई हो जाएगा. But we have to study the sentence कि what the sentence is saying. Sometimes the subject जो है that is used with words like along with, कभी कभी हमारे सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट लिखा होता है along with. आपके सेंटेंस में लिखा होता है I along with my mother, I along with my brother. So the sentence is joined with along with or as well as. आपके सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स आ सकते हैं that is along with or as well as. तो तब what is the form we use in the verb?
हमें यहाँ पे यूज करना है प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब हो जाता है वी हैव टू यूज हैज और हैव विद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो अब यहाँ हैज आएगा या हैव आएगा? In your book, in your editing, you are given either you will be given such a fill in the blanks और आपका have लिखा हुआ है या had लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, तो क्या आना चाहिए? What is the right way? हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं? We are talking सुमित along with राहुल, सुमित along with राहुल, यानी कि सुमित राहुल के साथ। तो हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सुमित के बारे में, हम राहुल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हमारा मेन फोकस है सुमित, सुमित अलोंग विथ राहुल। तो यहां हमारा आ जाता है हैव गॉन टू फेयर। हैव गॉन नहीं आएगा। द रीजन इज सुमित, हम सुमित के बारे में बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट राहुल। हमने कहा सुमित राहुल के साथ गया है, सुमित और राहुल गए हैं नहीं बोला। अगर यहाँ एंड होता तो हैव होता, अगर हमारा यहाँ पर एंड होता तो हैव होता। सुमित एंड राहुल हैव गॉन टू फेयर होता, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वी हैव सेपरेटेड इट विथ अलोंग विथ, उसके साथ। तो वी आर हेयर टॉकिंग अबाउट सुमित, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट राहुल। तो सुमित अलोंग विथ राहुल हैज गॉन, क्योंकि हैज इज यूज्ड विथ फर्स्ट। I hope it will be. Now rule number 4. अब हमारा है rule number 4. What is rule number 4? Very, very, very important. Very, in fact, confusing also. We have subject same है, right? And we are talking about 2 or 3 people. We are talking about joining the sentences. हम join कर रहे हैं, we have joined it. 2 subjects, we are talking about join with as well as. Now अगर हमारे पास ऐसे sentences होते हैं तो हम जो है what we do is हमें जो verb लगाना होता है, the verb that we need to use, we have to use it with the first subject. अगर 2 subjects हैं तो हमें फर्स्ट सब्जेक्ट को देखना है, जैसे हमने ऊपर भी देखा। सिमिलरली हमें फर्स्ट सब्जेक्ट को देखना है, जैसे कि माय फ्रेंड्स, ये एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है। एंड आई माय फ्रेंड्स एंड आई डैश इन ट्रबल। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स के लिए हम यूज करते हैं आर, और आई के लिए यूज करते हैं एम, राइट? वी यूज माई फ्रेंड्स आर इन ट्रबल, आई एम इन ट्रबल, यही यूज करते हैं हम लोग। माई फ्रेंड्स आर इन ट्रबल, आई एम इन ट्रबल। लेकिन अगर ये दोनों साथ में आ गए, ये दोनों साथ में आ गए, तो हमें जो है
इसको लेना है, not this one. My friends and I are in trouble. My friends I and I am in trouble नहीं होगा बच्चे. That is the rule of subject to verb. So this is one of the most important, confusing, and many times I have seen this that students make the mistake. क्योंकि उनको होता है कि अगर present tense है, I है तो am आना चाहिए. Yes, you are right. बिल्कुल बिल्कुल आप लोग सही हो. इफ इट इज प्रेजेंट टेंस तो आई एम आना चाहिए. लेकिन इफ इट इज जॉइंड विथ, अगर हमारे दो सब्जेक्ट्स हैं, माय फ्रेंड्स भी है एंड आई भी है, तो हमें जो है पहले सब्जेक्ट को ही लेना है, चाहे वो कुछ भी हो. वो सिंगुलर है तो भी और प्लूरल है तो भी. यहां पर हमारा जो है इट इज प्लूरल, यहां इट इज प्लूरल माय फ्रेंड्स. लेकिन अगर यही आपका जो है सिंगुलर है, here it is कांता. ऊपर हमारा माय फ्रेंड्स था, दैट वाज प्लूरल. लेकिन यहां हमने कांता के बारे में याद किया है. कांता एंड नॉट यू. अब यू के साथ तो आना चाहिए यू आर, यू हैव, राइट. लेकिन हमें यहां पर लिखना है कांता के लिए. तो कांता एंड नॉट यू इज टू कम विद मी या हैज टू कम विद मी, depending on the sentence. We will be using it for Kanta, not for you. So this rule should be very very alertly, carefully learned. कि जब भी हम sentences बनाते हैं, means the sentences can be for anything. You are making it in your letter writing, you are making it in your literature. Wherever you are using, it should be in this manner. कांता एंड नॉट यू. तो कांता के लिए यूज करेंगे इज है तो इज या हैज है तो हैज. मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट टेंस. तो दिस इज द नेक्स्ट रूल. The next is use of neither or not, each, every, and many. Each of the students, each of the students. Now हम यहाँ पर what the confusion normally comes is we are having each and we are having students. तो हमें students के लिए लेना है verb या फिर each के लिए लेना है. तो pretty good, it is for each, not for the students. Many times it happens कि आपको मतलब you have to use is, has, was, were, have,
the students what they do is normally they would be looking into this कि students है तो students के साथ are आएगा तो are to wear, have आएगा तो have to wear, were आएगा तो were to wear. मतलब अगर आपका पूरा पैसेज पास्ट टेंस में है एंड हम लोगों को was या were यूज करना था तो द चिल्ड्रन नॉर्मली कंफ्यूज कि हमें तो स्टूडेंट्स, नो, हम स्टूडेंट्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं बच्चे. वी आर टॉकिंग अबाउट हर बच्चा, क्लास का हर बच्चा. तो हम एक बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं. ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज टू वियर, या अगर पास्ट टेंस था वॉज टू वियर, वॉट एवर इट इज फॉर द सिंगुलर सब्जेक्ट वो हम यूज करेंगे. whatever is used for the singular subject. अगर प्रेजेंट टेंस है तो is या has, अगर पास्ट टेंस है तो मतलब कि was, had तो आपका कॉमन है. तो दिस is one of the very 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 common error that you can find in the editing section. This is one of the very common. Each of the students, तो लिखा हुआ है each of the students has to wear the badge. तो बच्चे क्या करेंगे? ओके, each of the students have to wear the badge लिखा है. ओके, हमें क्या करना है? Means a common mistake I'm telling you. It is written in this manner. And they have to find out the error. तो what they would do is, okay, हमें इसको डी को हटा दो और अ लगा दो, क्योंकि बैच तो एक है इसलिए अ लगा दो. तो नो, आप यहां पर देखो स्टूडेंट्स है लेकिन यहां पर ईच है, तो हमें तो ये देखना था, तो यहां पर हैज आना था. तो दिस वाज इनकरेक्ट, ना कि दिस. दिस इज द मिस्टेक दैट वी नॉर्मली फाइंड इन द एरर. जो हमारा एडिटिंग आता है उसके अंदर ये वाला आपका आता है. तो दिस इज नॉट यू हैव टू द को अ करना है, बट आपको हैव को हैज करना था. बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ईच, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स. So this is the next fifth rule. इसी में आपका नेक्स्ट आता है neither of his children. neither of his children. तो यहां अगेन इफ यू सी children is written. अब हमें यहां पर is या are है, तो children नहीं, neither. उसका कोई भी बच्चा अगली नहीं है. कोई भी बच्चा, बच्चे नहीं. neither of his children is ugly. neither of his children are ugly नहीं, neither of his children is ugly, because here we are focusing on neither, not on children. So this is the next what you call as mistake that you can normally find in the editing section. आप लोग editing में दे सकते हो. अब एक और, दिस इज ये बड़े ध्यान से देखना, ठीक है. Right? Now what happens? The common mistake. The common mistake is, what children will do is, they would take this one many. Okay, many है तो many के साथ क्या आना चाहिए? हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है do and does. The option that we have is do and does. अब हमने क्या किया? many, तो many के साथ तो प्लूरल है तो many के साथ तो do लगेगा. नो, हम यहां पर बात कर रहे हैं अ मैन. हम men के बारे में बात नहीं कर रहे हैं.
we are not talking about men, we are talking about man, singular. So many a man does not know how to sew. It's not many a men, it is many a man. So this is one of, and most of the time when we are doing the editing, तो ये जो men और man है या woman और women है, इसमें बड़ा confusion होता है students को. See, for the man we are using A, and for the men we are using E. Similarly, when it comes to woman, it is woman, and it is we men. It's not women, it is women. Woman, women. तो ये आपको देखना है कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, whether it is the singular or the plural. Many, many नहीं, a man. यहाँ पर है कई बार आदमी को खाना बनाना नहीं आता है, आदमियों को नहीं, आदमी को. It's not men, it is man. This is the next one. Now the next rule. Collective nouns. You might be having the sentence, those words like jury. Jury is member of 4 or 5 person who sit for justice. The jury जो हमारा होता है, that's for 4 or 5 people who sit for justice. Or it might be the word like committee. अगर हमने इसमें से jury, now jury is, as I said, a group of 5. Committee again, it may be consisting of many people, but हम उसको एक लेकर चलते हैं. We use it as a singular subject. For example, the jury is looking into the matter. The team of batsmen here, the team of batsmen. अब मैंने ऊपर आप लोगों को बताया था कि when it is men तो it is plural, but यहाँ हमें batsmen को नहीं देखना है. We are looking into the group, the team. We are talking about the team. The jury, यानी कि we are talking about it. Jury का मतलब हमें पता है 4-5 people, but here we are talking it as a singular subject. The team, the group. अब मैंने police को, if you have seen, I have put a box. क्यों? क्योंकि police is used both in singular and plural. अब अगर police is looking for है, the police is looking for the culprit. Here the police has been used as a team, as singular. लेकिन अगर मेरा यहाँ पर लिखा हुआ है the policemen,
यहाँ men है, प्लूरल है, तो देन हमारा यहाँ आ जाता आर। तो जो पोलिस है दैट कैन बी यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, मतलब आप जब लिखते पढ़ते हो तो आपको एक क्वेश्चन है बोर्ड में, मतलब एक क्वेश्चन है, आई डोंट रिमेम्बर दैट, एक किताब कि जब पोलिस जो था वो सर्च कर रहा था करके एक एडिटिंग का क्वेश्चन था. So this you have to see whether the polis has been used in the singular one, means it has been used as a group, team, or it has been used in a plural form. ये आपको ध्यान करना पड़ेगा. So this is the next rule. The next is titles of books. Titles of books. Now what does it mean कि titles of book, मतलब हम किस चीज के लिए बोल रहे हैं? तो sometimes जैसे physics, अब यहाँ physics जो है उसमें S आ रहा, तो that means is it plural? No, physics is a subject. Physics is a subject. So when we are talking about this, physics is an interesting subject. For me it is not. मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, but still. This is the name or title of a book, A Tale of Two Cities, written by Charles Dickens. A Tale of Two Cities. So now this is the name of a book. Title of a book. तो ये आपका पूरा एक है, ये टाइटल है, जैसे हमारे उसमें चैप्टर में था ना, स्टोरी ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक. सिमिलरली अ टेल ऑफ टू सिटीज, हम यहाँ सिटीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द नेम ऑफ द बुक, द टाइटल ऑफ द बुक. अ टेल ऑफ टू सिटीज. इस या वॉज, मतलब अगर हमारा प्रेजेंट टेंस है तो इज, अगर हमारा पास्ट टेंस है तो वॉज, या if we are using present perfect, has been. Written by Charles Dickens. Means when you are looking into subjects like physics and mathematics बोलते हैं physics, या फिर the titles A Tale of Two Cities. So here we are not talking about anything about the cities, it is the name of a book. Similarly, United States of America. United States of America. Because it is united. जो हमने ऊपर रूल लगाया था ना, for the group, the same rule is also applied here, because USA is a group of countries. It's a group of countries.
Now let us come to these two words, news, wages, measles. अगर आप यहां पर देखो तो S is accompanied. अब हम न्यूज को न्यू तो बोल नहीं सकते हैं. एंड वेजेस जो है दैट इज व्हेन वॉट एवर वी आर गिविंग टू अ वर्कर. वेज नहीं, वेजेस बोलते हैं. सो वेजेस, तो ये हमारा जो है इट इज रिटन इन प्लूरल. न्यूज मतलब एस लगा हुआ है, वेजेस में एस लगा हुआ है, मीजल्स में एस लगा हुआ है, लेकिन उसका मीनिंग सिंगुलर है. तो वी आर यूजिंग द सिंगुलर वर्ब दैट इज या हैज, ये यूज करते हैं. या अगर पास्ट टेंस है तो was. The news was in the paper. The news were in the paper नहीं. The wages of the worker is the wages of the worker was very low. The wages has been increased. Measles is a dreadful disease. Measles is a dreadful disease. हमने ऊपर एक किया था नीदर, उसमें हमने याद होगा आई हैड यूज्ड ओनली वन थिंग दैट इज नीदर ऑफ द चिल्ड्रन, नीदर ऑफ हिज चिल्ड्रन इज अगली, if you remember this. But now if a sentence is used as a phrase, we are using it with either or, not only but also. मतलब हमारा सेंटेंस है ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, मतलब ऐसे सब्जेक्ट्स हमारे सेंटेंसेस है. या नीदर और उसके साथ नॉर ये आया है, मतलब हमारा जो है कंजंक्शन ऐसा यूज हुआ है जिसमें हम दो यूज कर रहे हैं, ईदर एंड और को साथ में, नॉट ओनली बट ऑल्सो को साथ में, या नीदर एंड नॉर को साथ में. उसमें हमने सिर्फ नीदर यूज किया था. सो व्हेन वी आर यूजिंग सच वर्ड्स सब जॉइंड बाय, जैसे नीदर लता nor her brothers. मतलब is, are, has, have, neither Lata nor her brothers. अब उसमें मैंने आपको बताया था नीदर ऑफ द, लेकिन यहां पर हमारे पास है लता एंड हर ब्रदर्स. इस वाले में जिसमें नीदर नॉर ईदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो ऐसे वाले सेंटेंसेस है, वी वुड ऑलवेज लुक इनटू द सब्जेक्ट विच इज नियरेस्ट टू वर्ब, which is nearest to verb. यानी कि यहां पर हमारा is, was, has यही वाले वर्ड्स यूज होंगे. हम लता को नहीं देखेंगे, हम यहां ब्रदर्स को देखेंगे. द वन विच इज नियरेस्ट टू द वर्ब, ये वर्ब है आपका, और इसके बिल्कुल नियरेस्ट जो है उसको हम देखेंगे.
तो neither Lata nor her brothers have gone to the school. Not has, have gone to the school. Not only Lata but also her brothers have gone to the school. So whatever subject is near the verb उसको हमने देखना है. ये हमारा, इसको हम बोलते हैं far verb, इसको हम बोलते हैं near verb. तो ये हम बाद में whenever you are in 12th standard this you will be having in your CET कि what is far and what is near. तो हम ये वाला देखेंगे when we are using joining sentences using neither nor, either or, but not only but also. Not only Radhika but also her friends were eager to meet me. तो वर, आर, हैव ये यूज होगा. मीन्स वॉट एवर इज यूज विद द प्लूरल्स दैट. अगर यहां सिंगुलर था तो सिंगुलर होगा. नीदर लता नॉर हर ब्रदर है तो हैज आएगा. ब्रदर्स नहीं है, सिर्फ ब्रदर है तो हैज आएगा. मीन्स वॉट एवर इज देयर उसके साथ में. दिस इज द नेक्स्ट रूल. द लास्ट इज the last is, sometimes you might have seen, sorry, in this here will not come. Scissors. Scissors हमेशा हमारे दो होते हैं, मतलब they are pair. So we always call a pair of scissors. Please pass me a pair of scissors. Shoes दोनों पैर में डाले जाते हैं. तो when we are using these words, scissors, shoes, tongs, tongs मतलब चिमटा, चिमटे में भी आपने देखा होगा ये ऐसा होता है. तो they are pair. तो we use a plural verbs. सिंगुलर शू है तो वो सिंगल है, लेकिन सिजर्स आपका सिजर नहीं हो सकता है. सिजर्स आपके पेयर है. प्लीज पास अ पेयर ऑफ सिजर्स होता है. पेयर मतलब बिकॉज इट इज हैविंग द पेयर ऑफ ब्लेड. तो इट इज हमेशा इन द प्लूरल. तो दे टेक द प्लूरल वर्ब्स. द सिजर्स आर शार्प. देन सिमिलर इज, कई बार आपने बात किया होगा द रिच, द पुअर, द नीडी, द ब्लाइंड. अब हम ये पूरे ग्रुप के लिए यूज कर रहे हैं, जो हमने ऊपर भी एक रूल यूज किया था, लाइक द कमिटी, द ज्यूरी. सिमिलरली द रिच. नाउ द रिच कंसिस्ट ऑफ एवरीवन हु इज रिच. द पुअर इज कंप्राइजिंग ऑफ एवरीवन हु इज पुअर. तो दिस इज, वी आर रिलेटिंग देम टू प्लूरल. तो इसके साथ भी हमारा प्लूरल वर्ब होगा.
the rich are helping the poor, the rich are not helping the poor, whatever. तो यहाँ पर हमारा plural verb use हो रहा है, because the rich has been used for everyone who is rich. It's not used for a single person. तो इसीलिए यहाँ पर आपका rich जो है ऐसा use होगा. Then my shoes यहाँ वॉन मतलब फट गया, या टॉन बोलो, तो वॉन होता है जब बिल्कुल वो कट फट जाता है, टॉन इज सिर्फ फटना. तो माई शूज आर वॉन, माई शूज आर वॉन. लास्ट रूल, that is compound nouns. It will come under the same when we are using rich. तो compound nouns का मतलब होता है कुछ चीजें हम साथ में यूज करते हैं. अगर आप लोगों ने if you have any time read this phrase, time and tide waits for none. अब यहाँ पर तो ये दो चीजें हैं, टाइम भी है टाइड भी है, लेकिन दिस इज अ कंपाउंड नाउन, तो यहाँ हमने सिंगुलर वर्ब यूज किया है. bread and butter is a healthy breakfast. Bread and butter are two different things, but हम इसको compound noun बोलते हैं, हम इसको हमेशा साथ लेकर चलते हैं. So these are the rules of subject to verb agreement.